वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम टू दिस मीटिंग। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब तक सारे कैंडिडेट्स इस मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, सारे सपोर्टर्स हैं, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो लोग अटेंड करने वाले हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी अगले कुछ मिनट तक आप एक वीडियो देखेंगे। अभी आप एक वीडियो देखेंगे जो रिगार्डिंग होगा आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज की मीटिंग बहुत खास है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे लिखी है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग अटेंड कर सकें। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्सेज स्कैम है कि रैगेट, पहली बात। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या फ्यूचर है, दूसरी बात। तीसरा पार्ट आज ट्रेनिंग का, आपको ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है और आईडी कैसे लगानी है, और आपको अपना वजीरेक्स में कैसे अकाउंट खोलना है, और कौन कौन से वॉलेट्स हैं, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स हैं जो आप जहां पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये सारी बात आज हम करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि फॉर्सेज और फॉर्सेज का रोड मैप, फॉर्सेज कहां तक जाने वाला है, सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए आज यूट्यूब पे ये सारी की सारी चीज़ें लाइव हो रही है। तो वंस अगेन मैं सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब तक आप लोग एक वीडियो देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वीडियो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आज हम ये भी समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और वेबसाइट क्या है, सारी चीजें आज हम समझेंगे। आप सभी लोगों का वंस अगेन मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऑल आर वेलकम टू दिस मीटिंग। What is a smart contract? A smart contract is an electronic contract registered in the form of a program code that independently executes the actions laid down in it, depending on the given conditions. A smart contract can't be changed after uploading to the blockchain network. A smart contract can perform any operations laid down in it in advance automatically, without human intervention. Example: car purchase and sale transaction. The buyer transfers the entire amount for the car to the address of the smart contract. From now on, the deal can be considered open. The contract code stipulates the conditions that the contract will transfer this amount to the seller's wallet only when the buyer is appointed as the owner of this car in the electronic database. Such a transaction will be considered successful, and both parties to the transaction will receive what they wanted. If something goes wrong, and the transaction period goes beyond the agreed framework, the amount will be returned to the buyer's wallet. During the transaction, both the buyer and the seller had a guarantor, in the form of an invisible assistant, a smart contract. The contract didn't take a penny for its service, and completed it quickly, safely and as transparently as possible for everyone. Project advantages based on smart contracts. The main advantage of projects based on smart contracts is that the conditions are predefined and can't be changed. Anyone can see the code on which the smart contract is written. The code is in the public domain and contains all the conditions and details, like any paper contract. The next advantage is an almost unlimited duration. A verified smart contract exists as long as the blockchain in which it is loaded exists. And finally, is autonomy. Smart contracts don't require intermediaries. All operations between process participants are performed automatically, without the participation of an administrator. What is the difference between a project based on the smart contract and various hypes and projects with a common cash desk? As you already know, one of the conditions for a project to work on a smart contract is its autonomy and immutability. And the role of the administrator is only to write the working conditions of this smart contract, and upload it to the network. Further, the interaction between the participants of this project takes place without the participation of the administrator, and it can't affect the movement of ETH coins between the participants' wallets, since the contract can only perform predefined functions in its code and nothing more. That is, if it is written in the smart contract code that the currency is sent from the wallet of the first user to wallet of the second user, then this is what happens.
In projects in which you transfer your coins to the administrator's wallet and then wait for the accrual of passive income in percent, most often huge, which means that with a very high probability these percentages can only be received for a short period. You risk that the administrator will disappear at some point along with your coins, and coins of other participants. Or by the fact that the claimed huge percentage will very quickly deplete the general cash desk, administrator's wallet, and payments will also stop. In both cases, you will lose what you invested in this project. Now compare the conditions for participation in projects on smart contracts, and the conditions for participation in projects with a common cash desk. And make a decision for yourself in which projects, and on what conditions you want to participate. I add that projects on smart contracts have a different principle for the distribution of coins. तो सर ये था वीडियो आपके लिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैसे काम करता है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ कि फॉरसेज वेबसाइट और ब्लॉकचेन में क्या अंतर है। सबसे लास्ट में सीखेंगे हम यहाँ पर आज कि आपको ट्रस्ट वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, आपको अपनी आईडी कैसे एनरोल करना है, और आपको वजीरेक्स में कैसे चीज़ें देखना है, या आपको अपनी केवाईसी कैसे अप्रूव कराना है, आप आईएनआर कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सारी बातें बताने की आज मैं कोशिश करूंगा यहीं पे। आप सभी लोगों का वंस अगेन मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप forces.io, ये हमारी वेबसाइट है forces.io, आप ये टाइप करके किसी भी ब्राउज़र पे ये विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्केटिंग वीडियो है जो मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ जब हमारी प्लान मीटिंग्स होती है। आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ से। थोड़ा नीचे आएंगे, 6 की पॉइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के की पॉइंट्स हैं ये। ज़ीरो रिस्क, इम्यूटेबिलिटी ऑफ कंडीशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी, इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड 100% ऑनलाइन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की। अब थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये डेटा है, स्टैटिकल डेटा है, जो ये वेबसाइट बताती है कि आज तक इस सिस्टम में कितने लोग एनरोल हो चुके हैं। तो टोटल राइट नाउ अभी 8,42,058 पार्टिसिपेंट्स इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं। विद इन 24 आवर्स मोर देन 7,000 लोग यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल इथेरियम मोर देन 6,61,741 इथेरियम लोग अर्न कर चुके हैं। अगर यूएसडी डॉलर की मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटे के दौरान मोर देन 42,71,036 यूएसडी डॉलर ऑफ इथेरियम वैल्यू लोग यहां से अर्न कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस आंसर्स हैं। आप सभी लोग, जो लोग नए हैं, पुराने हैं, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं इसको। मैं कहूँगा आप इसको पढ़ें, बहुत सारा आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये यूट्यूब ऑफिशियल चैनल का लिंक है, प्लस ये आपका मेल आईडी है जहां आप अपने क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको अगर इथेरियम, सबसे पहले हम इथेरियम पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज इथेरियम। इथेरियम के बारे में आपको जानना है तो पहले आप इथेरियम समझिए। आपको प्रोजेक्ट समझना है तो पहले आप इथेरियम समझिए। अगर आप इथेरियम नहीं समझ सकते, आप अगर इथेरियम ब्लॉकचेन नहीं समझ सकते, तो डेफिनेटली आपको हमेशा इसमें डाउट रहेगा, जीवन भर डाउट रहेगा। हम यहां पे एज अ इंडिविजुअल एंटर हैं, तो आप इंडिविजुअल में जाइए, व्हाट इज इथेरियम, आप ये पढ़िए। ये देखिए, द फाउंडेशन फॉर आवर डिजिटल फ्यूचर, इथेरियम इज ओपन टू एवरीवन, ऑल यू नीड एज अ वॉलेट टू टेक पार्ट। इथेरियम सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दुनिया में जितने लोग हैं सबके लिए। आपको अडॉप्ट करना है तो आप अडॉप्ट करो, तो आपके लिए अच्छा है। जो नहीं अडॉप्ट कर रहा है उसके लिए खराबी है। ये देखिए, इथेरियम इज ओपन एक्सेस टू डिजिटल मनी एंड डेटा फ्रेंडली सर्विसेज फॉर एवरीवन, नो मैटर योर बैकग्राउंड और लोकेशन।
Its community built technology behind the cryptocurrency Ether and thousands of application you can use today. सर ये ऐसा ही बनाया गया है कि इसको कोई भी यूज कर सकता है. बैंकिंग फॉर एवरीवन. मोर प्राइवेट नेटवर्क का मतलब यह है यहां पर यूजर्स का डेटा उसी का रहता है, कोई नहीं चुरा सकता उसको, ना ही कोई उसकी जासूसी कर सकता है. पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है. यहां पर जो कुछ होता है आपके वॉलेट से अदर वॉलेट पे ही जाता है. कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोग यहां पे कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, नहीं, ये अलाउ ही नहीं करता. ये इथेरियम ब्लॉकचेन कहती है, ये खुद ही डिसेंट्रलाइज है. सेंसरशिप रेजिस्टेंस. नो गवर्नमेंट और कंपनी हैज कंट्रोल ओवर इथेरियम. This decentralization makes it nearly impossible for anyone to stop you receiving payments or using services on Ethereum. मतलब ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस है, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल पे काम नहीं करता इथेरियम ब्लॉकचेन. आपका इथेरियम चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका बना हुआ है. कई क्रिप्टो करेंसीज आपकी प्राइवेट हैं, कई ओपन सोर्स हैं. ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है आपका, सबके लिए. इसके रूल इसके हिसाब से हैं. आपको कहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट रोक सकती है, आपको मना कर सकती है, तो आपको लिक्विड मनी में ट्रांसफर करने से मना कर सकती है. पहले इंडिया में जो बैन था क्रिप्टो करेंसी में, आपको क्रिप्टो करेंसी रखने के ऊपर बैन नहीं था. आपको जो लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं उनको सर्विसेज नहीं मिलती थी. मतलब वो लीगली INR में पैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे. दिस इज द बैन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी पे लगाते हैं. पर मैं आज आपके यहां ये डाउट क्लियर करूंगा कि बेसिकली इंडिया में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि नहीं ब्लॉकचेन, या इथेरियम यूज हो रहा है कि नहीं. इथेरियम ब्लॉकचेन इंडियन गवर्नमेंट तो यूज नहीं कर रही कहीं पे. अगर ऐसा है तो फिर हमारा फ्यूचर कहां पे है क्रिप्टो करेंसी में, क्या स्केबिलिटी है, क्या सिक्योरिटी है. तो ये सारी चीजें बात करूंगा आज मैं, इसलिए मैंने आज यहां से स्टार्ट किया है कि व्हाट इज इथेरियम. इथेरियम इज ओपन प्लेटफॉर्म टू एवरीवन, सबके लिए है. ये देखिए सबसे पहली न्यूज देख सकते हैं. गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की नीति आयोग की ब्लॉकचेन की आपकी ब्लॉकचेन के यूजेस पे एक पूरा का पूरा सिस्टम बना चुकी है, दे चुकी है रिपोर्ट बना के. आप ये पढ़ सकते हैं. 59 पेज पॉलिसी पेपर इज पार्ट 1 of 2 डिस्कस. ये CEO अमिकांत commented है. गवर्नेंस इन इंडिया फेसेस यूनिक चैलेंजेस गिवन द स्केल, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर delivery of varied public services. Blockchain offers unique possibilities of addressing uses relating to improving governance. सर गवर्नेंस भी इंक्रीज हो सकती है इससे. ये देखिए बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, हर जगह यूज होने वाला है सर. Peer to peer exchange नीति networks completely regulated by governments can be decentralized and features peer to peer exchange and totally centralized system can also be unregulated and operate beyond the bounds of law. Decentralized networks do not necessarily means they aren't regulated. ऐसा नहीं होता है कि डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स रेगुलेट नहीं हो सकते. आप उसको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बना के रेगुलेट कर सकते हैं. यह है वो रिपोर्ट. ये रिपोर्ट की कॉपी मैं पहले भी भेज चुका हूं, आप भी ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं. कुछ मत टाइप करना, आप गूगल पे ये टाइप करना गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी पार्ट 1, आप ये डाउनलोड कर लेंगे सर. इसमें क्या क्या है, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, एक ये नीति आयोग ने रिपोर्ट बना के दी है. कहां कहां यूज हो सकता है, कैसी क्या चीजें हैं. पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल ब्लॉकचेन एसोसिएशंस हैं जो आपके गवर्नमेंट्स को ब्लॉकचेन पर ले जाने के लिए हेल्प आउट करते हैं. जो चीज खोती जाएगी मैं यहां से डिलीट करते जाऊंगा. ये देखिए पूरा का पूरा एसोसिएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोशिश कर रहा है
कि सारी दुनिया ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले धीरे धीरे करके। ये देखिए, आप ये भी खोल के देख सकते हैं। ये मेरे पास एक डेटा है, आज मैंने निकाला है यही। विच गवर्नमेंट्स आर यूजिंग ब्लॉकचेन्स राइट नाउ, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, ये सारी यूज हैं, आप ये निकाल सकते हैं खुद ही। मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, जॉर्जिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लटाविया, लुथानिया। ये देखिए, अलग अलग वर्ल्ड्स में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपका ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब एशिया की बात आती है, एशिया, चाइना, एस चाइना हैज ओवर 500 रिपोर्टेड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड, यहां पे तो है ही। हांगकांग, इंडिया, आप लोग ये बोलते हैं ना सर कि इंडिया में ब्लॉकचेन यूज नहीं होता, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है। सर ऐसा नहीं है, ये इथेरियम ब्लॉकचेन की ही रिपोर्ट है। द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यूटिलाइजेस अ ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग प्रोग्राम टू कंसल्ट इंडियन सिटीजन टू डिटरमाइन फ्यूचर पॉलिसी पोजीशंस। ये देखिए, यहां यूज हो रहा है स्मार्ट दुबई प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे जाने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे जाने वाला है, आप ये भी निकाल सकते हैं। ये दुबई, ये देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दुबई की ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी क्या है। ये इसके द्वारा हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। 2020 के एंड में पूरी की पूरी सिटी आपकी ब्लॉकचेन पे चली जाएगी। इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इनको क्या फायदा होने वाला है, फायदा ये होने वाला है अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे तो 2021 में सॉरी, आपके जनवरी से ही यहाँ पर जो भी यहाँ के बासिंदे हैं उनको अगर वेजिटेबल्स खरीदना हो, ग्रॉसरी खरीदना हो, फ्लैट लेना हो, कार लेना हो, सब कुछ ब्लॉकचेन से लेना पड़ेगा। बैंकिंग, हॉस्पिटलिटी, हर चीज बैंकिंग पे। और गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर दुबई ये टेक्नोलॉजी यूज कर लेती है तो मात्र केवल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग से 5.5 बिलियन दिरहाम तक सेव कर लेगी। 5.5 बिलियन दिरहाम, इतना पैसा होता है कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बना सकती है। सब कुछ इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होने वाला है। ये सारी चीजें ये मैं आपको रोज बताता हूं, आप ये वीडियो खुद जाके आज देख सकते हैं। मैं आज वीडियो नहीं प्ले करूंगा आपके लिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसमें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिलियन डॉलर फर्म से। ये देखिए, वीडियो गेम जायंट्स यूबीसॉफ्ट पूरी की पूरी आपकी ब्लॉकचेन पे जा रही है। इथेरियम, डच बैंक, आईएनजी, एम्बरी ट्रेड, ये एक बहुत बड़ा फर्म है सर, पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे जा रहा है, हर चीज ब्लॉकचेन पे। ये देखिए, मैं आपको और भी कुछ चीजें बताता हूं। ये फोर्ब्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं जाके कितनी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम है, सारी नाम आपको यहां पे मिल जाएंगे। ये देखिए, जैसा मैं आपको बताता हूं, व्हाट कंपनीज आर यूजिंग इथेरियम फॉर एंटरप्राइज यूज केसेस, सप्लाई चेन एंड रिटेल, अमेजन सबसे बड़ा नाम, ओवरस्टॉक, कंज्यूमर गुड्स एंड बिवरेजेस, एनहोसर, ब्यूज एंड वेव, बैंकिंग, आप बैंकिंग के नाम देख लीजिए, एनर्जी, हेल्थ केयर, फिनटेक, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सीमेंस, टेलीकम्युनिकेशन, कॉमकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फॉक्सकॉम, इंटेल, एचटी, सैमसंग, हर कंपनी आपको मिलेगी सर। कोई अछूता नहीं है इस टेक्नोलॉजी से। कोई भी व्यक्ति, केवल अगर आप बात कर रहे हैं बिना नॉलेज की, बिना चीजों की, तो पहले आप चीजें समझें, तब आपको समझ में आएगा। अब कुछ रिलेटेड इंडियन न्यूज, ये देखिए, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग प्रपोजेस रेगुलेटिंग क्रिप्टो एज कमोडिटी इन इंडिया। सर सिफारिश पहुंच रही हैं, पूरी की पूरी चीजें यही कह रही हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड।
ऐसा कोई नहीं है कि अगर जो आपको कह रहा सर बिना सर पैर की लोग जो बात करते हैं बिल्कुल गलत है सर। ये देखिए, इंडियन क्रिप्टो बैंक्स एंड एक्सचेंजेस सी मासिव ग्रोथ अमिड राइजिंग कोविड-19। मतलब कोविड-19 में बैंकिंग सेक्टर जहां पे लो पे जा रहा था, केवल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ने लोगों को पैसा दिया है 100%। आप ये देख सकते हैं सारी की सारी चीजें, ये देखिए कहां से पैसा आया, सब कुछ आया, सारी चीजें आपको, ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। विल इंडिया बैन क्रिप्टो? 5 एक्सचेंज, जो इंडिया में 5 एक्सचेंज हैं, उनकी ये रिपोर्ट है कि इंडिया क्या क्रिप्टो को बैन कर देगा। आप ये जाके देख सकते हैं सर। ये देखिए, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट द नोट एज ऑफ नो। ये देखिए, आपका कुछ नहीं होने वाला सर। ये बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है। ये देखिए, द इंडियन सुप्रीम कोर्ट quashed द बैंकिंग बैन बाय द सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर मैनी हियरिंग्स। द आरबीआई सब्सिक्वेंटली कंफर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अ राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन बाय यूनिकॉर्न को फाउंडर बीवी हरीश दैट, ये यहां पे सर आप लोग पढ़ लीजिएगा, देयर इज नो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेसेस और ट्रेडर्स इन इंडिया। The Indian government and the central bank have independently indicated that cryptocurrency is legal in India। आप सारे लोग, ये राइट टू इंफॉर्मेशन है आरबीआई ने दिया। जो लोग ये कहते हैं ना आरबीआई ने अप्रूव कर नहीं रखा, ये आप आरटीआई से, आरबीआई से ही पूछ सकते हैं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, बहुत सारे एक्सचेंज लॉन्च हो रहे हैं। ये देखिए, आरबीआई कंफर्म्स नो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेसेस और ट्रेडर्स इन इंडिया। उसकी भी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। ये देखिए, इंफॉर्मेशन आउट, ये आपको मैं वो दिखा रहा हूं जो आरबीआई के थ्रू मिला हुआ है आपका रिप्लाई। एज ऑन डेट नो सच प्रोहिबिशन एग्जिट्स। नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी सर, हमारे प्रधानमंत्री भी इस चीज को प्रपोज कर चुके हैं सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज मैंने रिलेटेड आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी। बेसिकली इथेरियम कहां जा रहा है, इथेरियम कहां ले जाने वाला है वर्ल्ड को, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है सर। देखिए सब कुछ। अब मैं बात करता हूं इथेरियम रेट क्यों बढ़ रहे हैं। पहली बात तो जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होगा, इतने बड़े बड़े पार्टनर्स, ये देखिए 450 enterprises business members including Microsoft, JP Morgan Chase, Senator, Accenture, ING, Intel, Cisco, इतनी सारे लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कारण है? ओपन सिस्टम है, मैसिव सपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, रैपिड डिप्लॉयमेंट है। केवल वेट कर रहे थे आपके इथेरियम 2.0 रिलीज होने का, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड ये है, आप ये देख सकते हैं। बिटकॉइन में 7 है, इथेरियम में 20 है। अब आपका इथेरियम 2.0 आ जाने के बाद 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड होगी सर, 1 लाख। अभी वीजा की सबसे ज्यादा हुआ करती थी, अब आपके इथेरियम के ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होंगे जब इथेरियम 2.0 अपना पूरा फेज कंप्लीट कर लेगा सर। अब बात करता हूं, ये हो गई बात क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की, ये बात अलग हो गई कि इंडिया में क्या फ्यूचर है। अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत सारा डेटा है सर, आप लोग कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई नहीं, केवल लोगों की बातें सुनना है बस। किसी ने बोल दिया गलत तो गलत, किसी ने बोल दिया सही तो सही। सर मेरी भी बात मत मानो, बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। और ये प्रोजेक्ट आप जब समझ लें तभी आप इसमें हाथ लगाएं, काम करें। कोई नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, और इसका रिस्क भी समझ लें आप। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पे आउट नहीं आ सकता है सर, टाइम लग सकता है।
सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूं इस प्रोजेक्ट फॉरसेज की। आप जो यहां पर देख रहे हैं ये सारा ट्रांसपेरेंट है। कोई भी व्यक्ति यहां पे देखिए 842048 है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अभी आपको चेंज दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं दिखेगा, ये देखिए 842373 आईडीज हो गई। अब यहां पे आप लॉगिन में जाइए, कोई भी आईडी आप लॉगिन कर सकते हैं। कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप कोई बाउंडेशन है कि कोई एडमिन है, कोई पासवर्ड है, कोई कंपनी या पर्सन कंट्रोल करे। सर देखिए दुनिया में आपने जो भी प्रोजेक्ट किया, कुछ भी किया, सर ये लोग इसकी ये यूएसपी को कि लोग ये बोल रहे हैं इसका कोई मालिक नहीं है, लोग ये बोल रहे हैं कि इसका कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो कल की डेट में भाग जाएगा। तो आप जवाब क्यों? अरे सर भागेगा ही क्यों? भागता वो है जिसके पास इकट्ठा होता है, जो कलेक्ट करता है। जब ज्यादा हो जाता है तो लालच आती है तो भाग जाता है। यहां तो सर जाना ही नहीं है, कलेक्ट ही नहीं होना कभी। आपको पे आउट विद इन सेकेंड्स आता है, कोई आरओआई नहीं आ रहा है कि आपको पहले। अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है वो। आरओआई के चक्कर में लोगों ने वहां पे 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए लगाया। बैटिंग करती है हमारी कंपनी फला, और हमसे एक मैडम बहस कर रही थी आज कि सर पहले तो बोलते हैं और फिर बाद में। सर मैंने तो कभी बोले ही नहीं, अपनी कोई मीटिंग्स में नहीं बोला, मैंने कोई भी सेशन में नहीं बोला है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पहले समझिए इस चीज की रिस्क को समझिए, प्लस आप इस चीज को समझिए कि ये प्रोजेक्ट क्या है। सर आपको अगर कोई भी कंट्री जहां पे लॉ चलते हैं, जहां क्रिप्टो एक्सचेंज के लॉ हैं, वो इसको गलत ठहरा सकती है, उनके लॉ हैं। मेरे घर के रूल है, आपके घर के रूल में आप अपने घर में कैसे रहते हो मुझे नहीं पता। आप मेरे घर आएंगे तो मेरे घर के हिसाब से रहना पड़ेगा आपको। ये हर जगह हर दुनिया में रूल चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत हो गई। आप कोई भी आईडी खोल सकते हैं। ये मैं एक आईडी खोल के बताता हूं, ये देखिए आप, इस तरीके से आपको ये दिखता है। इसमें X3 और X4 प्रोग्राम है। आप ये सारी चीजें, प्लान की बातें मैं आपसे रोज करता हूं। ये आपका वेबसाइट का डेटा है। मैं आपको आज वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली वेबसाइट क्या है, कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या चेंज पॉसिबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी डोमेन हो, हर चीज का रजिस्ट्रेशन होता है, हर चीज की लास्ट डेट होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग गलत वर्ड यूज करते हैं और यूट्यूब पे बोलते फिरते हैं कि फला फला लोगों को चप्पल मारो। सर वेबसाइट है, बनी बात है, उसका डोमेन नेम एक ना एक दिन एक्सपायर होगा। पर एक्सपायर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रिन्यू नहीं हो सकता, रिन्यू हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट forces.io हमारा वेबसाइट के कारण नहीं चल रहा है, इस ब्लॉकचेन के कारण चल रहा है। etherscan.io ये ब्लॉकचेन है, हमारा प्रोजेक्ट यहां पे डला हुआ है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ये देखिए यहां पे, ये प्रोजेक्ट यहीं से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन कर सकता है। पूरा ओपन सोर्स कोड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है यहीं का यहीं, आप ये देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जाके ये ओपन सोर्स कोड प्लेटफॉर्म यही चेंज नहीं हो सकता। वेबसाइट आज बंद हो जाए, forces.io आज बंद हो सकती है, गवर्नमेंट आज बैन कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि forces.io प्रोजेक्ट आपका ब्लॉकचेन से चला गया। ब्लॉकचेन दूसरी एंटिटी है, वेबसाइट डोमेन इंटरनेट दूसरी इंटरनेट है, दूसरी एंटिटी है। आज बंद हो सकती है, मैं कह रहा हूं forces.io आज वेबसाइट बंद हो चुकी है। इसका मतलब क्या प्रोजेक्ट गोल हो गया? नहीं। आप ये प्रोजेक्ट देखिए यहीं पे, एक सेकंड जरा मैं एक इथेरियम एड्रेस कॉपी कर लूं क्योंकि बताने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए यहां से आप रीड कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, मैं देखता हूं। ये देखिए कैसे लिखूं मैं इसको, ये देखिए आईडी टू एड्रेस, ठीक है। यहां पे मैं आईडी डालूंगा, ये आपका एड्रेस बता देगा। ये देखो नीचे लिखा आ जाएगा, ये देखिए इथेरियम एड्रेस आ गया। ये आईडी नंबर इस इथेरियम एड्रेस से अटैच है। आप यहां पे इथेरियम एड्रेस डालेंगे, आपको ये बता देगा हाँ ये रजिस्टर्ड है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहीं से रीड भी हो सकता है। राइट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है
पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप न्यू ज्वाइनिंग्स भी लगा सकते हैं यहां से। ये देखिए रजिस्ट्रेशन, आपका न्यू लेवल अपग्रेडेशन भी हो सकता है, आपका मेटामास्क के थ्रू भी आपको बिना वेबसाइट के सारे रजिस्ट्रेशन और अपग्रेडेशन हो सकते हैं। कतई जरूरी नहीं है कि आपको वेबसाइट की जरूरत है। वेबसाइट का डेटा, ये डैशबोर्ड कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी शेर की जगह कुत्ता भी डाला जा सकता है, बिल्ली भी डाला जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी है, देखिए हमारा इंटरफेस चेंज हुआ है, फर्स्ट पेज हमारा लोगो चेंज हुआ है फॉरसेज का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट चेंज हो गया, नहीं। X3 X4 मैकेनिज्म का ऑलवेज आपका सेम ही रहने वाला है जीवन भर। यहां पर जो आपको टूल्स मिल रहे हैं, आपको जो भी वेबसाइट में अपग्रेडेशन हो रहा है, इट्स रिगार्डिंग आपके लिए टीम बिल्डिंग के लिए है। और सर कोई भी ऐसा नहीं है सिस्टम यहां पे कि जो ये दिखलाता हो या ये झुटलाता हो कि ये लोग गलत कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कितना है ये आप भी जानते हैं, आप किसी व्यक्ति का अकाउंट खोल के भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक ऐसा प्रोजेक्ट है पहला जहां पे आपकी केवल डाउनलाइन से नहीं, आपकी अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन से भी पे आउट आना है। जो लोग ये कहते फिरते हैं कि सर ये डूब जाएगा, तो मेरे को एक बात बताइए, अब इस व्यक्ति ने एक आईडी मेरे पास 1 इथेरियम इन्वेस्टमेंट था, 1.4 इथेरियम अर्न कर चुका है अपनी अपलाइन की मेहनत से, तो क्या गलत कर दिया सिस्टम ने? यहां कौन सा ऐसा सिस्टम है कि नहीं हो रहा है? ये आपको एज अ रिवार्ड टीम वर्क इनकम मिल सकती है यहां पर। अगर आज आपने यहां पर सपोज करो 10 इथेरियम का इन्वेस्टमेंट किया, आज के हिसाब से 3 लाख हो गए, मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं आप और आज आपको केवल 3 ही इथेरियम वापस आते हैं, 7 इथेरियम का आपको लॉस है सिस्टम में। सर कुछ मत करिए, आप 3 इथेरियम केवल ज्यादा दिन नहीं 1 साल वेट करिए, आपका यही इथेरियम जो अभी $290 का है, $290 का है, ये लगभग $1200-1400 का हो जाएगा। आपके पैसा, यही पैसा 3 गुना हो जाएगा। आपके 1 लाख रुपए वापस 3 लाख रुपए हो जाएंगे, आपको कोई लॉस नहीं हो जाएगा, आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। इसी कारण से इस प्रोजेक्ट में लायबिलिटी नहीं है। तो वेबसाइट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, आज आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट नहीं बदला जा सकता। यह है वो प्रोजेक्ट जहां पर ये डला हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। आप इसमें कोई चेंज देखेंगे भी नहीं कभी, ये रोज आपको ऐसे ही खुलेगा पूरा का पूरा। और हां एक और चीज बातें, रिपोर्ट्स फ्रॉम द फिलीपींस, ये जो आप देख रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि ये वो कंट्री है जहां पर पहले से इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट या क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स चलते हैं। इन्होंने ये डिमांड करी कि अगर आपको ये चलाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लाडो जी का ये कहना था कि ये डिसेंट्रलाइज है, सारा पैसा मैं इससे नहीं कमाता हूं, ये सबके लिए है, बाय द पीपल है, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये देखिए साफ मना कर दिया। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, नीचे रिफ्यूजेस टू कंप्लाई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये शट डाउन नहीं हो सकता, आप इसको बंद नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर जो भी ये करता पाया गया तो पेनल्टी लगाएंगे और आपको जेल भी हो सकती है अगर इस देश में आप फॉरसेज कर रहे हैं। तो ये उस देश का रूल है जो बनाया है, ये हमारे भारत देश में ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी से वे आउट में सोचें कि आप क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकते हैं, तो सर आपको ना आपके इथेरियम कोई आपसे छीन सकता है, ना ही आपसे कोई आपका बिजनेस छीन सकता है इथेरियम बेस्ड पे, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके लिए ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना है। सबसे ज्यादा आज की डेट में फॉरसेज कहीं से चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम एंट्रीज फिलीपींस से ही आती हैं, आप चेक कर लेना। और इसी के कारण यही इन लोग ने, इस गवर्नमेंट ने ऐसी सी रिपोर्ट दिखा लिया है, इसलिए आपके ईद गैस स्टेशन में, आपके ईद गैस स्टेशन में स्कैम लिखा आ रहा है, क्योंकि ये पब्लिक साइट है ईद गैस स्टेशन, किसी की नहीं है पर्सनल कि आप इसमें कोई चीज डेटा नहीं आएगा। ये देखिए
आप इधर पे जाओगे तो आपको फिलीपींस गवर्नमेंट के पेज पे ले जाएगा। ये देखिए, SEC वांस पब्लिक ऑन फॉर्सेज अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये देखिए क्या लिखा है, फॉर्सेज विच इज हेड बाय लाडो इज नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड विद द SEC। सर अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी तो फिर काय का डिसेंट्रलाइजेशन सर। ये देखिए, आप सारी रिपोर्ट यहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ये वही रूल हो गया कि भैया आपके घर में अलग रूल है, मेरे घर में अलग रूल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया। आप उसको गलत ठहराइए, मैं सही ठहराऊं, ये चलता ही रहेगा। पर अगर आप इस चक्कर में बैठेंगे तो शायद आप उस टेक्नोलॉजी को सीखने से छूट जाएंगे, समझने से छूट जाएंगे जो आप समझना चाहते थे। ये देखिए आप, तो ये था आज का लगभग जो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि बेसिकली सारी चीजें कैसे डिफरेंट है, सारी चीजें। अब मैं आता हूं आपके ट्रस्ट वॉलेट पे। आपको इस सिस्टम में एनरोल होने से पहले एक वॉलेट डाउनलोड करना है। आप ट्रस्ट वॉलेट भी कर सकते हैं, आपके एंड्रॉइड पे होता है। आपका टोकन पॉकेट एंड्रॉइड आईफोन, कॉइनबेस वॉलेट आपका एंड्रॉइड आईफोन, और मेटामास्क आपका लैपटॉप या पीसी पे एज अ ब्राउजर डाउनलोड होता है। अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। आपको जाना है एप्पल से, आप गूगल प्ले से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, फिर आपको क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है। फिर आपको यहां पे 12 वर्ड की फ्रेज मिलेगी। आपको ये फ्रेज अच्छे से लिख के रखना है कहीं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आपको उसका फोटो लेना है और आपको उसको कहीं भेज देना है, आपको उसको कहीं कॉपी करके किसी को भेज देना है। सर अगर आपका वॉलेट का ये 12 फ्रेज कहीं पे मिस हो गया, कहीं पे खो गया, तो ना ही इसमें कोई पासवर्ड चेंज नाम की चीज होती है, ना ही कोई फॉरगेट पासवर्ड नाम की चीज होती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आता है, आपको 1 2 नंबर लिखा हुआ। फिर आपको यही डालना रहता है, क्लिक करके सिलेक्ट द अकॉर्डिंग टू मिनिमिक वर्ड्स आपको करना रहता है, आपका वॉलेट खुल जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर है। फिर आपको इथेरियम एड्रेस के अंदर जाना है, रिसीव पे जाना है, आपको ये एड्रेस कॉपी करना है और जिससे आपको इथेरियम चल रही है आप उसको भेज सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। एक सिंपल सा एक आपका पीडीएफ है जो मैंने पीडीएफ के थ्रू बताने की कोशिश करी, क्योंकि बार बार मोबाइल से बताओ तो समझ में नहीं आता, ये फ्रेजेस नहीं दिखती है। तो सब प्रोसीजर कैसा है, आपको ऐप से डाउनलोड करना है, क्रिएट न्यू वॉलेट पे जाना है, सारे नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं, 12 वर्ड्स अच्छे से लिख के रखना है। फिर अगले सेक्शन में उनको उसी क्रम में जमाना है जिस क्रम में वो जमे हुए थे, आपका वॉलेट खुल जाएगा। फिर इथेरियम के अंदर जाना है, आपको रिसीव का बटन दबाना है। यहां आपको अगर सेंड करना है, रिसीव करना है, कॉपी करना है, आप हर चीज कर सकते हैं। यहां पे सिंपल है, आपको कोई ऐसा नहीं। अगर आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो सिंपल एंड सोवर है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना फॉर्सेज में, ये आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हर चीज के अंदर आप चाहे टोकन पॉकेट यूज कर रहे हो, उसमें डैप करके ऑप्शन आता है, डैप। ये देखिए यहां पर आएगा। अब आपको यहां पे क्लिक करना है, ये जहां पे डैप लिखा है आपको, यहां पे डैप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डैप पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, ऊपर आपके ये सर्च बार आएगा। यहां पर आप या तो एफिलिएट लिंक कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या आप forces.io डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे टाइप करेंगे, आपका नेक्स्ट करेंगे, आपका वेबसाइट खुल जाएगा। फिर आपको यहां आज की डेट में रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये आएगा। यहां पे आजकल लिखा आता है आईडी नंबर पहले से और टू रजिस्टर का बटन, आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये मिलेगा पेज, नेटवर्क फीस कितनी लग रही है, कहां पे जा रहा है, कितना टोटल लग रहा है, ये देखिए आपको ये सब दिखेगा। अप्रूव करेंगे और आपकी आईडी पंच हो जाएगी। इट इज सो सिंपल एंड इक्विवेलेंट। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया
क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, तो बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस्ड हैं। लाइसेंस मतलब आप यहाँ पर जो भी इथेरियम अर्न कर रहे हैं वो इन वॉलेट्स में भेजकर ट्रेड करके आईएनआर में कैश करा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले आपको वजीरेक्स, यूनोकॉइन, कॉइन स्विच, कुबेर, आपको बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं, ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फोन पे। ये वॉलेट्स इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए आपको पहले उसमें केवाईसी अप्रूव करानी पड़ेगी। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, तब आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने मिलेगा। जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे फिर आप यहाँ पे इथेरियम परचेज कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क में भेजकर अपनी आईडी एनरोल या अपग्रेड कर सकते हैं, और फिर आप जो वहां से अर्न कर रहे हैं वापस इन जगहों पे भेजकर, आप वजीरेक्स में वापस भेजकर, जेपे में वापस भेजकर ट्रेड करके सिंपली उसको आईएनआर में कन्वर्ट करा सकते हैं। इन वॉलेट्स के थ्रू आप जो भी कन्वर्सन कराएंगे, जो भी आप इथेरियम वापस लेंगे, आपको वो टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। सर एक बात और मैं बता दे रहा हूं, बकायदा गवर्नमेंट आपसे कल की डेट में पूछ सकती है, मंथ जब आप ईयर का आईटीआर भरते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ट्रांजैक्शंस का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क। कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई यहां पर इलीगलिटी कर रहा है, नहीं, आपने अपना पैन कार्ड नंबर दिया है, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहिए। एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स है, इस कारण भी नहीं बन सकता। ये देखिए आपको वजीरेक्स में आपको कैसे जमा करना है, सब चीज का सपोर्ट सेंटर बना हुआ है, हर चीज आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे देखिए आपको आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है, ये देखिए कैसे साइन अप करना है, क्या करना है, सारी डिटेल आपको यहां पे मिलेगी। तो ये था जो आज मुझको आप लोगों से बताना था। इसमें मेन पार्ट यही था कि बेसिकली फॉर्सेज क्या है, किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। सर अगर आप इंडियन रूल्स के हिसाब से देखेंगे, इंडियन कंपनी रूल्स एक्ट के हिसाब से देखेंगे, जो कंपनीज के लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया, उस हिसाब से देखेंगे तो फॉर्सेज इलीगल कहलाएगा, डेफिनेटली कहलाएगा। पर सर फॉर्सेज वो एंटिटी ही नहीं है, पहली बात तो फॉर्सेज कोई कंपनी नहीं है, एक प्रोजेक्ट है। और कैसा प्रोजेक्ट है, आपका इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो डिसेंट्रलाइज है, किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में काम नहीं करता। सर अगर कोई भी चीज मैनिपुलेटेड होती, यहां पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर आईडी खोल के दिखाता हूं। ये 1 नंबर आईडी शायद मिस्टर लाडो की ही है। तो आप यहां पे देखेंगे टोटल इथेरियम इनके पास कितने हैं, 2840, 2839.34 इथेरियम है। टोटल इथेरियम यहां कितने लोग अर्न कर चुके हैं, 6,62,209। 1% इथेरियम भी 1 नंबर आईडी पे नहीं है। कहने का मतलब यह है, आप जहां पर काम करेंगे, आप जहां पे वर्कआउट करेंगे, वहीं पे पे आउट आएगा। सर आप खुद सोचो, अगर 6,62,209 इथेरियम बढ़ चुके हैं सिस्टम से, तो फिर एक नंबर पे मात्र 3,000 से भी कम इथेरियम क्यों है। मैं आपको कुछ ऐसी आईडीज बता देता हूं, ये देखिए 3,500 इथेरियम अर्न कर चुके हैं। कैसे, कहने का मतलब यह है कि मैनिपुलेटेड नहीं है, आपका कहीं कोई इकट्ठा नहीं कर रहा है। आप लोग जो अपनी टीम के हिसाब से बना के काम कर रहे हैं, आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा आपको आपके पास ही पे आउट जनरेट हो रहा है, कोई यहां पे लेके भगने वाला नहीं है। सब कुछ वेल मैनेज, 100% ट्रांसपेरेंट है। आप देखो, इस व्यक्ति का पर्सनल वॉलेट भी खोल के देख सकते हैं। देखिए, जिससे ये आईडी, इसके पास अब कितना बैलेंस है, आईएनआर में कितनी वैल्यू है, देखिए 1,96,000। मैंने इसको आज आईएनआर में कन्वर्ट किया, ये देखिए आप
कब कब फोर्सेस से पे आउट आ रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी कहां होती है सर? किस बात का डर है? जिसको देखना है देख ले, जिसको प्रूव करना है गलत प्रूव करे सर, बंद कर दे। forces.io वेबसाइट बंद होगी ना आपकी, आपका ब्लॉकचेन के ऊपर, इथर स्कैन के ऊपर आपको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। आप पूरा प्रोजेक्ट आप यहीं से रन कर सकेंगे, पूरा का पूरा आपका इथेरियम सेव है। ये देखिए ट्रांजैक्शंस के अंदर जाके आप 414 ट्रांजैक्शन इस व्यक्ति के, आप लास्ट में जाके आप देख सकते हैं कितने दिन पहले आया। ये देखिए 139 डेज, 4 महीने हुए हैं लगभग एंटर हुआ है। आप देख सकते हैं उतने ही एंट्री अमाउंट से एंटर हुआ था और ये व्यक्ति कितना कमा सका है। तो कहने का मतलब ये है सर मेरा, इस टोटल 100% लेगेट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इन टर्म्स ऑफ फिलीपींस गवर्नमेंट, इन टर्म्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि आप वो टर्म समझिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के रूल्स क्या हैं वहां पे। ये देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहां रजिस्टर्ड नहीं है। एन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी देयरफॉर मस्ट बी ड्यूली रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड बाय एसईसी बिफोर इट कुड बी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक pursuant और टू सेक्शन 8 द सिक्योरिटीज रेगुलेशन कोड। इस कारण से बैन किया हुआ है। कहने का मतलब है आप सार समझिए कि क्यों मना किया है, किस लिए मना किया है। लेकिन सर कोई भी आपको अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो करेंसी के रूल के ही हिसाब से बता रहा हूं, इसके लिए एक एसोसिएशन बना हुआ है। आपको कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता एथेरियम रखने से, बिटकॉइन रखने से। कोई भी आप वर्चुअल करेंसी कितने की भी रख सकते हैं। आपको अगर कल की डेट में बैन लगेगा या किसी चीज पे लगेगा तो केवल इस चीज पे लगेगा कि आप उसको अपनी लिक्विड मनी में ट्रांसफर नहीं करा सकते। पर अब बैन इंडिया में चांसेस लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि ये बहुत बड़ा आज की डेट में टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आ रहा है और ये बहुत बड़ा एक कमाई का साधन भी है गवर्नमेंट के लिए। यहीं पे आज मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, इसलिए मैंने YouTube पे आज लाइव किया है ताकि बहुत सारे लोग सुन सकें और आगे भी इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकें। तो सिंपल सा सबसे पहला आज ये था, मैंने आपको ये बताया कि वेबसाइट और ब्लॉकचेन क्यों अलग है। वेबसाइट कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे आपका प्रोजेक्ट जीवन भर रहेगा। जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है तब तक इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप पूरा का पूरा वहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। आपका इथेरियम एड्रेस वहां पे अटैच है, आपके इथेरियम एड्रेस पे आपको पे आउट आना है, आता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वेबसाइट केवल एक स्टैटिकल डेटा दिखाने के लिए मिरर कॉपी है आपकी, ताकि आपकी लैंग्वेज में 1 2 3 इंग्लिश, हिंदी, टर्किश, आपका जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस है उसमें बनाई गई है ताकि आप उसको समझ सकें, रीड आउट कर सकें इजीली। हर कोई टेक्निकल भाषा नहीं जानता, हर कोई ब्लॉकचेन पे जाके इथेरियम एड्रेस और 0 1 के आंसर्स नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकता। अब आगे की बात, एक चीज और बात बता के खत्म करना चाहूंगा आज यहां पे। फोर्सेज रोड मैप लाई थी। पहला एक ऐसा डिसेंट, सर पहली बात तो कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो एक छोटे से कमरे से चालू होता है। फ्लिपकार्ट कल की डेट में वेयर हाउसेस नहीं थे, दो लोगों ने मिलकर जब फ्लिपकार्ट बनाई थी तो आपका ऐसा नहीं था कि वेयर हाउसेस बता दिए थे पहले ही से 100। एक कमरे से चालू हो गई थी और एक किताब ही बेची थी उनने पहले 1 बुक इज सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट। ना तब वो कंपनी थी, केवल एक वेबसाइट थी, कंपनी बाद में बनी, इतना बड़ा नाम बाद में कमाया। ये रोड मैप है, ये देखिए,
इस रोड मैप के हिसाब से आप ये देखेंगे तो कई चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रेजेंटेशन ऑल लैंग्वेजेस में बन चुका है, हमारी वेबसाइट आपकी बनने वाली है आईपीएस सिस्टम पे, जो कल की डेट में वो भी चेंज नहीं होंगी। पर्सनल मैसेजिंग सिस्टम आपको मिल चुका है। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या किसी भी वॉलेट से जो आप ऑथराइज लॉगिन करते हैं, वहां पे आपको ऑफिस के पहले एक मैसेज का बॉक्स बन के आता, आप वहां से अपनी टीम में मैसेज भेज सकते हैं। मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हो चुका है, फॉर्सेज एकेडमी बन चुकी है, सारी चीज बन चुकी है। सब कुछ पॉसिबिलिटी है सर। ये रोड मैप है, कहां तक जाने वाला है आप खुद देख लो। आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात यह है। और इसी की कड़ी में सबसे पहले चीजें लॉन्च हुई, और अभी 5 अगस्त को ही आपका ब्रांड बुक, आपको अभी एक ब्रांड बुक आपकी डाउनलोड कर पाएंगे अभी वेबसाइट से। जैसा आप प्रोडक्ट का ब्राउजर दिखाते हैं ना, आप दिखा पाएंगे लोगों को। ये सारी चीजें आपके यूटिलिटी टूल्स हैं, गोल, चैट, कस्टमाइज, एफलेट लिंक, जो आपकी आईडी पे अवेलेबल रहती हैं। ये आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी अभी मैं बता देता हूं। फॉर्सेज ग्लोबल बॉट और फॉर्सेज एकेडमी बॉट आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कार्ड्स आने वाले हैं, ये हमारा नया लोगो है। ये कार्ड्स कैसे आएंगे, कैसे लॉन्च होंगे, आप इसमें BTC, इथेरियम, ट्रॉन और USDT, ये 4 चीजें रख सकते हैं। ये फॉर्सेज लॉन्च करने वाला है, खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट लॉन्च करने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है आपके। ये टेलीग्राम है। आपको अगर फॉर्सेज ग्लोबल बॉट एक्टिवेट करना है, फॉर्सेज एकेडमी बॉट एक्टिवेट करना है, तो आप वो एक्टिवेट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलीग्राम। ये बहुत अच्छा यूटिलिटी टूल्स है उन लोगों के लिए आपकी टीम में जो लोग नए बंदे आते हैं। ये देखिए आप फॉर्सेज ग्लोबल बॉट, आपके सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है। ये देखिए आपको यहां पर ये मेन मेनू है इसका, आपको फॉर्सेज से कैसे रजिस्टर करना है, पर्सनल अकाउंट से कैसे काम करना है, इंफॉर्मेशन एंड हेल्प, हर चीज आपको ये बॉट ऑटोमेटिकली बता देगा। किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिखाइए, नॉलेज दीजिए। टेलीग्राम कैसे यूज करते हैं, ईथर स्कैन में कैसे डेटा ढूंढते हैं, आप सारी चीजें, ये आपका फॉर्सेज एकेडमी बॉट है। ये देखिए फॉर्सेज एकेडमी बॉट, ये भी आपको ज्वाइन करना है। आप मेन मेन्यू में जा सकते हैं, सिलेक्ट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आपका हिंदी, इंग्लिश, उस लैंग्वेजेस में आपके पास जो भी डेटा है फॉर्सेज के पास, आपको वो दिखेगा मिलने को, पढ़ने को। वीडियो डले हुए हैं, आप देख के पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सर कोई इसलिए नहीं बना रहा है ये सब चीजें कि उसको कल की डेट में अपना काम बंद करना है। एक्चुअली ये एक ऐसा पहला सिस्टम आया जिसने 100% बांटा लोगों को, और ट्रांसपेरेंटली बांटा। ऐसा नहीं कि किसी से बोल रहा है कि भैया मेरा 50 लाख पे आउट है, सर अकाउंट नंबर दिखा देना जरा खोल के। नहीं, अकाउंट नहीं दिखा सकते भाई, वो पर्सनल चीज है मेरी। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे को ये देखो मेरी वेबसाइट पे देखो, मैं आईडी खोल के दिखा रहा हूं, 50 लाख दिख रहा है। आ किसको रहा है? सिंपल सा कहने का मतलब है, ये जो रोड मैप के थ्रू काम कर रहा है, तो कई लोग, सर जब सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। जब हाथी चलता है ना तो झूम के चलता है, मस्ता के चलता है, अपनी गंतव्य की ओर चला जाता है। और जो कुत्ते रहते हैं वो पीछे भौंकते ही रहते हैं, बस कुछ नहीं करते। आप अपना काम करो, आप आगे बढ़ते जाओ, आप लोगों को सिखाते जाओ और लोगों के लिए नॉलेजफुल बनते जाओ। बस मैं इतना ही कहूंगा। ये हो गया फॉर्सेज, आप ये टेलीग्राम का यूज आपका ये कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं इथेरियम 2.0, तो भाई इथेरियम 2.0 वर्जन आप यहां पर जाके ईथर स्कैन पे जाके, ये इथेरियम का साइन है, आप इस पे क्लिक करिए, ये आपका इथेरियम 2.0 वर्जन का यहां पे सारी डिटेल आ जाएगी। सर इथेरियम 2.0 वर्जन इसलिए आया है केवल स्पीड बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए।
ये नया प्लेटफॉर्म इसलिए आया ताकि बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े फर्म्स इस सिस्टम में आने वाले थे। आप खुद सोचिए सर, अगर गूगल अपना पेमेंट सिस्टम ब्लॉकचेन पे ले आएगा तो कितनी ट्रांजैक्शन होगी पर सेकेंड। अभी जो स्पीड है इथेरियम की ओनली 15 ट्रांजैक्शन है, 15 ट्रांजैक्शन आप पर सेकेंड कर सकते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे 7 हो सकती है, रिपल पे सबसे ज्यादा 1500 और वीजा जो सिस्टम यूज करता है उस पे है 45,000। लेकिन इथेरियम 2.0 जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो सकेंगी। तभी ये लॉन्च हुआ है इथेरियम 2.2। इसलिए अभी मार्केट एकदम से बूम आया हुआ है इथेरियम में, इसलिए इथेरियम इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसका रेट, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अपने जो प्रोजेक्ट जो इसमें इन्वेस्ट कर रखे थे अपने प्रोजेक्ट्स लाना शुरू कर देंगे, रेडी है उनके पास सब कुछ। ये देखिए जो मैंने आपको बताया कौन कितना यूज कर सकता है, ये देखिए यही डिटेल है। केवल स्केलेबिलिटी बस एक प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी पूरा का पूरा ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म बना चुका है मई 2019 में। अमेजन मैनेज ब्लॉकचेन अर्लियर इन अप्रैल। मतलब इतने बड़े बड़े नाम है सर कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो अब आप ये डिसाइड करो, अब आप बैठ के सोचना कि मैंने गलत बताया कि मैंने सही बताया। सर अगर गलत बताया हूं तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मैंने गलत बताया है आपको। मैंने कोई भी चीज आपको यहां पर अपने पास की नहीं दिखाई, सारी की सारी चीजें मैंने लाइव दिखाई आपको, कुछ नहीं बताया मैंने आपको। मैंने आपको यह भी बताया स्कैम क्यों है और यह भी बताया आपको कि लेगिट क्यों है। ये आपको डिसाइड करना है कि बेसिकली इट्स अ स्कैम और बेसिकली इट्स अ लेगिट, ये आपके ऊपर है। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आज की मीटिंग यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसा ही नॉलेज आपको मिलता रहे और आगे ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रहे तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें साथ में मिलकर सीखने वाले हैं। क्योंकि अभी मैं वी डू सिंपल एकेडमी करके एक लॉन्च करने जा रहा हूं जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करती है, नॉलेज बेस आपको बातें मिलेंगी। उसके अलावा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको टेलीग्राम कैसे यूज करना है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे यूज करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज करना है, आपका बिजनेस, इस टाइप के इंफॉर्मेशन उस चैनल्स पे मिलेगी। उसके ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, वो भी लाइव। आपको अपना वीडियो कैसे कैप्चर करना है, आपको छोटे छोटे टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं, ये भी सिखाया जाएगा। ये मैंने इसलिए लाया है क्योंकि आप और मैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों में कमी बेसी हैं, लोगों को बता नहीं पाते, लोगों को समझा नहीं पाते। इसी कारण से हम अपना बिजनेस बढ़ा नहीं पाते और बाहर के लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, इस कारण उनका बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ जाता है और वो ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाते हैं। ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाने के कारण क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की समझ होती है, पहुंच होती है, समझ सकते हैं। हमारे यहां तो लोग इसने ये कहा और उसने वो कहा, बस इसी में लगे। अगर आपको लगता है तो मैं आज पहली बार आपको अपने YouTube चैनल से कह रहा हूं कि अगर मेरा लगता है कि मैं सही हूं और मैं चीज बिल्कुल सही बताता हूं तो आप यहां पर लाइक भी कर सकते हैं मेरे इसमें चैनल्स पे, आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करिए, ताकि मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, पहली बार बोल रहा हूं, ताकि लोग इस चीज को जाने और सही समझें। सर सिंपल सी बात है। इसी के साथ आज मैं मीटिंग यहां पे पूरी खत्म करता हूं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्लस आप सभी लोग ही मेरे प्रेरणा स्रोत हो, क्योंकि मेरा ये पहला क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है। एक बात और मैं बता देता हूं, और मैं जो आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये सारी बता रहा हूं, ये मेरे को इससे कोई फोर्सेज से पैसा नहीं मिलता। कई लोग ये कहते हैं कि भैया इनको फोर्सेज पे कर रहा है। मेरे बारे में आप लोगों से जान सकते हैं, मैं पहले क्या करता था, इस प्रोजेक्ट में कैसे आया, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। ये नॉलेजफुल जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये डेफिनेटली आप लोगों के कारण ही है। जितने लोगों ने मुझे आज अटेंड किया उन लोगों के कारण है, क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर करते करते आज मेरे को इतना नॉलेज हो गया है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दे पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी सही है,
तो आप डेफिनेटली आप इस चीज को लाइक कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल को, मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं और सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि सर अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे टेक्नोलॉजी पे, आप अप टू डेट नहीं रहेंगे आज के वर्ल्ड के हिसाब से, तो आपका हाल भी कोडेक कंपनी जैसे या नोकिया जैसे हो सकता है, जिन्होंने वर्ल्ड को टाइमली रहते टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। अगर आपने अडॉप्शन नहीं किया नई टेक्नोलॉजी सीखने में, नई चीज करने में, तो आप भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से ये कहूंगा, आप लोग सबसे ज्यादा काम नॉलेज लेने पे लगाएं, टीम बनाते रहिए, काम करते रहिए, जो आपका काम है वो करते, लेकिन आप चीजें भी सीखते रहिए। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम हैं और वहां जहां वर्ल्ड आगे चल के कहीं भी कोई भी क्राइसिस हो सकती है, आपको आज कोरोना ने सिखा दिया है कि हमको घर पर कैसे रह के काम करना है। इस दुनिया में सारे लोग नेटवर्क से ही पैसा कमा रहे हैं, बिना नेटवर्क के कोई पैसा नहीं कमा रहा। तो आप नेटवर्क की अहमियत को समझिए, टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझिए, और इसी के साथ नॉलेज की भी अहमियत की समझिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कई लोग लिखना पढ़ना सब छोड़ चुके हैं, लिखना भी मत छोड़िए, पढ़ना भी मत छोड़िए, ये दोनों भी कैरी कर रखिए। इसी के साथ ये मीटिंग खत्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।